Good morning, students. Now, the topic of today's discussion and today's lecture is about the pharmacognosy of neem and turmeric. Okay, these are the most common drugs which we use in our day-to-day life. First of all, we are going to discuss about curcuma. Curcuma is basically हल्दी. ठीक है, turmeric इसको बोलते हैं local language में. सिनोनिम इसका होता है सेफ्रन. इंडियन सेफ्रन बोलते हैं इसे, टर्मरिक, हल्दी, हरिद्रा. ठीक है, संस्कृत में से हरिद्रा बोलते हैं. Biological sources: turmeric basically consists of dried as well as fresh rhizomes of the plant Curcuma longa. Family होती है इसकी Zingiberraceae. Organoleptic characters you can see: color is orange yellow to yellow, odor is aromatic, taste is warmly aromatic and bitter. Shape is primary rhizomes are ovate और pear shaped. ठीक है, oblong होते हैं, cylindrical होते हैं, often short branched होते हैं. साइज इसका होता है 4 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर विड्थ. Fracture is horny and the cut surface is waxy and resinous in appearance. Microscopy, you can see the transverse section of the rhizome is characterized by the presence of mostly thin-walled rounded parenchyma. Parenchyma cells present होती हैं इसमें thin-walled. ठीक है, scattered होते हैं vascular bundles इसमें present होते हैं all over. डेफिनेट एंडोडर्मिस होती है, जो एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर होती है वो डेफिनेट होती है, डिफाइंड होती है. फ्यू लेयर्स ऑफ कॉर्क डेवलप्ड अंडर द एपिडर्मिस एंड स्कैटर्ड ऑलियोरेजिन सेल्स विद ब्राउनिश कंटेंट आर प्रेजेंट. ठीक है, वोलेटाइल ऑयल और रेजिनस सेल्स ब्राउनिश कलर की प्रेजेंट होती है इसमें. द एपिडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स क्यूबिकल इन शेप ऑफ वेरियस डायमेंशंस. जो एपिडर्मिस लेयर होती है ऊपर वाली, तो वो थिक वॉल्ड सेल से बनी होती है, किसी भी डायमेंशन की होती है वो. द कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम द सब एपिडर्मल लेयर्स एंड इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्क द एपिडर्मिस इज रिटेन्ड. कॉर्क इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 to 6 लेयर. जो हमारी कॉर्क लेयर होती है वो एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर बता रहे हैं. ये कॉर्क इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 to 6 लेयर्स. उसमें 4 से 6 लेयर्स होती है, थिन वॉल्ड ब्रिक शेप्ड होती है पेरेंकाइमा सेल्स. नेक्स्ट, द पेरेंकाइमा ऑफ द पिथ एंड कॉर्टेक्स कंटेन्स ग्रेन. जो पेरेंकाइमा होती है और पिथ होती है या कॉर्टेक्स भी जो प्रेजेंट है हमारी लेयर, उसमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. इन विच समटाइम्स लॉन्ग लेंथ शेप अनऑल्टर्ड स्टार्च ग्रेन्स ऑफ 4 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर आर फाउंड. ठीक है, oil cells have suberized walls and contain either orange yellow globules of a volatile oil or amorphous resinous masses. जो volatile oil cells present होते हैं वो walls में present होते हैं. ठीक है, और contain करते हैं orange yellow globules of volatile oil और amorphous resinous masses also. Cortical vascular bundles are scattered and are of acolitral type. The vascular bundles in the pith region are mostly scattered. जो vascular bundles हमारे होते हैं जिसमें xylem और phloem present होता है वो scattered form में present होते हैं. The vessels have mainly spiral thickening. जो vessels होती है उसमें spiral shape होती है और कुछ की reticulate और annular structure होता है. Now you can see the TS of turmeric rhizome which is schematic. ठीक है, ऊपर से दिखाई देने वाला कैसा होता है बेसिक बता रहे हैं. सबसे पहले आप देखेंगे सेंटर में ये स्टील दिखाई दे रहा है, स्टील रीजन. एंडोडर्मिस एपिडर्मिस के बाद वाली इंटरनल लेयर. नेक्स्ट, ऊपर आप देखेंगे कॉर्टेक्स लेयर है इनसाइड. कॉर्टेक्स के बाहर वाली लेयर को कॉर्क बोलते हैं और जो अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं जो वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है. Now you can see the detailed structure of turmeric rhizome. You can see the endodermis layer. ठीक है, endodermis layer is inside layer of epidermis. ठीक है, next is vascular bundle जो कि scattered form में present है all over. Scattered form you can see over here. ठीक है, this is scattered form. Now you can see the secretion cells present है जहाँ पे volatile oil भी present होता है हमारा. ये pigment cells भी present है. ठीक है, इन्हें define कर सकते हैं आप. Next is sclerenchymatous fibers. ठीक है, sclerenchyma क्या होती है, हमारी जो strengthening provide करती है, हमारे structure provide करती है एक proper definite अपनी cell को. ठीक है, तो ये sclerenchymatous fibers भी इसमें present होते हैं. Next you can see the habitat क्या है turmeric का, perennial herbaceous plant है. ठीक है, The leaves are alternate and arranged in 2 rows. जो leaves होती हैं वो alternate होती हैं और 2 rows में. पेरिनियल का बेसिकल मीन क्या होता है, 12 मतलब 12 मासी बोल सकते हैं उसको, 12 महीने हम इसको ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके करक्यूमिन. जो येलो कलर होता है हमारा टर्मरिक का वो क्यों होता है, ड्यू टू द करक्यूमिन प्रेजेंट इन इट.
Essential oil होता है 2 to 7% with high content of bisabolane derivatives. It also contains desmethoxycurcumin and bis-desmethoxycurcumin, that is known as BDMC, and common phytosterols are artemisinin, zingiberine, fatty acids, polysaccharides, etc., etc. These are the chemical constituents. That is the curcumin 1 is the structure of curcumin. You can see the two benzene rings, उसमें methoxy group present है, OH group present है, ठीक है, CH bond present है दोनों side, CO groups attached है with a CH2 bond. ये अलग structures हैं सारे. You can see these structures in the PPT. Now the identification test, chemical test, you can see the powder drug को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो एक क्रिम्सन कलर फॉर्म होता है. एक्वस सॉल्यूशन अगर हम टर्मरिक का बोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, विच ऑन एडिशन ऑफ अल्कली चेंजेस टू ग्रीनिश ब्लू. ठीक है, कोई भी अल्कली हम ऐड करेंगे तो वो ग्रीनिश ब्लू कलर शो करेगा. अब यूजेस क्या है करक्यूमिन के, हमारे यूजेस में आपका पहला आएगा, इट सपोर्ट्स फाइट्स अगेंस्ट डिजीजेस. ठीक है. सेकेंड, इट ट्रीट्स अर्थराइटिस. ठीक है, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करता है. नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स द कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस. ठीक है, हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस को ट्रीट करता है. इट इम्प्रूव्स द स्किन हेल्थ. ठीक है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ पेन. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर. कैंसरस सेल्स को प्रोड्यूस होने से भी रोकता है. नेक्स्ट इज इट कॉम्बेट डिप्रेशन. डिप्रेशन को भी दूर करता है अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं डेली ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटीज़. नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब हमारी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है. इट रेगुलेट्स द कोलेस्टेरॉल लेवल. इट प्रमोट्स gastrointestinal health also. It improves respiratory health, etc. and etc. It has many uses of curcumin. Next drug is the neem. ठीक है, you can see the fruits of neem, that is निमोली भी बोलते हैं कोई कोई लोग इसको, and this is the tree of neem. ठीक है. So starting with this drug, the synonyms are, हिंदी में इसे बोलते हैं नीरा या निम्ब, मलयालम में बोलते हैं वेपा, मराठी में लिम्बा, उड़िया में निम्बा, एंड तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज में वेम्बू. नेक्स्ट, द बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश और ड्राइड लीव्स एंड सीड ऑयल ऑफ एजाडिराक्टा इंडिका बिलोंगिंग टू फैमिली मेलिएसी. ठीक है. जोग्राफिकल सोर्स है, इंडिया में मिलती है वास्ट तरीके से, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, मलया में, इंडोनेशिया, जापान, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है, यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में एंड एमपी में. ठीक है. नाउ द मैक्रोस्कोपी, दे आर इम्पेरिपिनेट ऑल्टरनेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं इसमें. एक्सटिपुलेट, बाहर की साइड को 3 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं. लॉन्ग स्लेंडर पिटियोल्स प्रेजेंट होते हैं. लीफलेट 7 to 17 सेंटीमीटर की होती हैं. ऑल्टरनेट अपोजिट लीव्स हमारी सिचुएटेड होती हैं. शॉर्टली स्टॉक्ड होती हैं. 1 to 1.5 सेंटीमीटर बेसिकली लेंथ होती है उनकी. एपेक्स होता है इसका ओवेट और लैंसियोलेट या अटेन्यूएट. ठीक है. लीव्स आपको पता ही है ओवेट सी शेप की होती हैं, आगे से ओवल सी. ठीक है. बेस इसका अनइक्वल होता है. कलर स्मूथ एंड डार्क ग्रीन. ओडर इज टिपिकल ओडर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ओडर यू कैन से. टेस्ट इज वेरी बिटर एंड एक्यूरेट. माइक्रोस्कोपिकली लीफ में दे हैव डॉर्सी वेंट्रल लीफ. ठीक है. कवरिंग और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ सर्फेसेस. कवरिंग ट्राइकोम्स में, ट्राइकोम्स आर प्लांट हेयर्स. ठीक है. तो दोनों साइड कवरिंग और ग्लैंडुलर दोनों सर्फेसेस में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर भी नीचे भी. Covering trichomes are basically uniseriate, 3 to 4 cells long, having collapsed cells, acute apex and warty cuticle. ठीक है. क्यूटिकल जो इनकी होती है उसमें मस्से जैसे प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर शॉर्ट, यूनिसेल्युलर स्टॉक एंड बाइसेल्युलर यूनिसेल्युलर हेड होता है. इट हैव अनोमोसाइटिक स्टोमेटा. इसमें अनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि इरेगुलर सेल्ड होते हैं. नाउ दिस इज द TS ऑफ नीम. यू कैन सी द TS ऑफ नीम. ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में, यू कैन सी दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट. ये जो है. नेक्स्ट, ये जो आपको दिखाई दे रही है गोल गोल से पिंकिश सेल, दीज आर नोन एज जाइलम वेसल्स. इसके साथ ही हमारे को जो नीचे की लेयर दिखाई दे रही है, दीज आर फ्लोएम सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज
ये जो नीचे आपको डार्क डार्क सा दिखाई दे रहा है दैट इज टेंजेंशियल कैम्बियम, ठीक है। दिस इज लोअर एपिडर्मिस, ये जो लेयर है आपकी, दिस इज लोअर एपिडर्मिस लेयर, दैट इज अपर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये थोड़ी सी विजिबल नहीं है लेयर्स क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लर्ड आ रही है, बट दीज आर पैलिसेड सेल्स, ठीक है। अपर पैलिसेड सेल्स, लोअर पैलिसेड सेल्स, और बीच में जो हमारा प्रेजेंट है दिस इज नोन एज पिथ। दिस इज द ओवेट शेप ऑफ लीफ, नीम की लीफ की जो शेप होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके प्रेजेंट होते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर वेरियस थेरेप्यूटिक एंड कॉमर्शियल पर्पजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीफ में क्वर्सेटिन प्रेजेंट होता है, निम्बोस्टेरॉल, निम्बिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फ्लावर्स में निम्बोस्टेरॉल, कैम्फेरॉल, मेलिसिट्रिन एट्सेट्रा इज प्रेजेंट। बार्क में निम्बिन, निम्बिडीन, निम्बोस्टेरॉल, मार्गोजिन। सीड में एजाडिरेक्टिन, एजाडायन, nimbin, वेपेनिन, विलासिनिन एंड फ्रेक्सिनेलोन आर प्रेजेंट इन दिस। इसका एक और कॉमन है जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा पोटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसके सीड में प्रेजेंट होता है, दैट इज एजाडिरेक्टिन, ठीक है। This is the structure of azadirachtin. This is a complicated structure of azadirachtin. You can see various types of functional groups are attached in this chemical constituent. यूजेस हैं इसमें, लीव्स के यूज़ हैं पोल्टिस में, बॉयल्स पे अप्लाई करते हैं जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं हमारे, वॉर्म में, जॉन्डिस में, किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ में भी ये यूज़ होता है। अल्सरेशन ऑफ काउपॉक्स, इंसेक्ट रेपेलेंट भी है। ऑयल्स जो होते हैं नीम के वो यूज़ होते हैं स्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक, रूमेटिज्म, स्किन डिजीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओलेइक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, एंटीवायरल एक्टिविटी भी होती है इसकी। Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section below. Thank you.